فرقہ اہل حدیث کا باطل اور غلط عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ بذاتی ہی یعنی فزیکلی صرف اور صرف عرش پر موجود ہے اور کہیں نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالی جسم اور کسی بھی جگہ میں ہونے سے بالکل پاک ہے۔ یقین نہیں آتا؟ آئیے دیکھیں۔ جی جسم وہ رہتے ہیں فزیکلی اوپر ہے، ان کا علم ساری جگہ ہے، بلکہ ہر جگہ ہے، اوپر کیا ہر جگہ ہے، علم ساری جگہ ہے، علم اور ان کا پاور، ان کی قوت ساری جگہ ہے، لیکن ہے تو اوپر۔ تو گھر جسم وہ رہتے ہیں فزیکلی اوپر ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف اہل حدیث فرقہ نے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ کے اسکالرز کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح تھا۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں جو حنفیوں کی کتاب ہے، اس میں سند پہنچائی جاتی ہے امام ابو حنیفہ تک۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے مجھ کو معلوم نہیں اللہ عرش پر ہے یا اللہ زمین پر ہے، مجھے معلوم نہیں اللہ کہاں ہے، کہا جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور جو اللہ کی اس آیت کو نہیں مانتا، قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، چاہے قرآن کی 114 سورتوں کا انکار کیا جائے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ایک آیت کا انکاری ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کی جاتی؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دلیل کے بعد بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں دلیل کیا ہے، فرماتے ہیں ما روى شیخ الاسلام ابو اسماعیل الانصاری فی کتابہ الفاروق، شیخ الاسلام آپ لقب دیکھیں، ابو اسماعیل الانصاری ان کی کتاب ہے الفاروق، بسند الی مطیع البلخی، پورے سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، انہ سأل ابا حنیفہ، کسے سوال کیا گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سوال کیا، کیا سوال کیا گیا؟ قال لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض، ایک شخص کہتا ہے مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے یا زمین پر ہے، فقال امام حنیفہ جواب میں فرماتے فقد کفر، ایسا شخص کافر ہے، لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہوا، سورہ طه نمبر 5، وعرشہ، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں تو سن لیں۔ یہی عقیدہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، یعنی کہ رب العزت آسمانوں کے اوپر اور ایسے ہی عرش کے اوپر ہے۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، جن کا انتقال سن 792 ہجری میں ہوئی، اور وہ عقیدہ طحاویہ کہ شرح انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ فتویٰ نقل کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ اہل حدیث فرقہ کی یہ کوشش تحقیق نہیں بلکہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک اہل حدیث فرقہ کے کسی اسکالر نے اس قول کی کوئی بھی سند پیش نہیں کی، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں پیش کر سکتے۔ جیسا کہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ فرقہ اہل حدیث کے اسکالرز نے نہ تو اس کی سند پڑھی بلکہ اس میں موجود راویوں کے حالات کو بھی چھپا لیا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پریزنٹیشن کو بڑے غور سے دیکھیں۔ اہل حدیث اسکالر نے اپنی دلیل جس کتاب سے پیش کی ہے، اس کتاب کا نام شرح عقیدۃ الطحاویہ ہے، جس کے لکھنے والے ابن ابی العز ہیں۔ ان کا انتقال 792 ہجری میں ہوا۔ جب ہم نے اس کتاب شرح عقیدۃ الطحاویہ کو کھول کر دیکھا تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی کوئی بھی سند نہیں ملی، بلکہ یہاں پر ایک دوسری کتاب کا حوالہ ملا جہاں سے یہ قول لیا گیا ہے۔ اس دوسری کتاب کا نام کتاب الفاروق ہے، جس کے لکھنے والے ابو اسماعیل انصاری الحروی ہیں، جن کا انتقال 481 ہجری میں ہوا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ابو اسماعیل الحروی اور ابو مطیع البلخی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور اس قول کو بیان کرنے والے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں تقریباً 270 سال کا فاصلہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ابو مطیع البلخی سے یہ بات الفاروق لکھنے والے اسماعیل الحروی تک تقریباً 270 سالوں بعد کیسے پہنچی؟ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ نام کے اہل حدیثوں، ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کی سند کہاں ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں
सच्ची या झूठी बात डाल रहे हैं, जबकि आपकी दलील की सनद ही गायब है। सही और ज़ईफ तो दूर की बात है, किसी भी नाम के अहले हदीस ने इसकी कोई सनद आज तक पेश नहीं की। दीन में बिना सनद के किसी कौल या बात को कहना कैसा है, ये उन्हीं के आलिम से सुनिए। अगर कोई आदमी इस तरह से बयान करे, कौन मानेगा उसको? तो सनद लौलल इस्नाद लक़ाल मन शाअ मा शाअ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल है कि अगर सनदें नहीं होती, सनद को महफूज रखने और बयान करने का अगर एहतमाम ना होता, जिसके जी में जो आता कह देता है। हर चीज़ दीन बना सकते हैं, बगैर सनद के कुछ भी बोल दिया, कोई भी आदमी बोल सकता है। तो एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ भी घड़ सकता है, लेकिन जब सनद की बात आती है तो फिर आदमी अपने झूठ में पकड़ा जाता है। तो ये जो रिवायत है इसकी सनद ही नहीं है, ये कंजुल उम्माल में बगैर सनद के मौजूद है। लिहाजा इससे दलील पकड़ना ये ऐसे आदमी की पीठ पर सवार होना है जिसकी टांगें नहीं है। मुझको लेके चल, और मैं खुद नहीं जा सकता, तेरे को कैसा लेके जाऊँ? तो ये दलील ही नहीं बन सकती है, इसकी सनद ही नहीं है। गोया के इन नाम के अहले हदीस आलिमों ने खुद को बिना टांग का साबित कर दिया और अपनी अवाम को अपने कंधे पर सवार कर लिया है। इसके अलावा अहले हदीस फिरका के बड़े माने जाने वाले जुबैर अली ज़ई, इरशादुल हक असरी और इन जैसे दूसरों ने बिना सनद बात का मजाक उड़ाते हुए ऐसी बातों को मौजू और मन घड़त कहा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जब अपनी बारी आती है तो बिना सनद बात को भी दलील बनाकर पेश कर देते हैं। जैसा कि इमाम अबू हनीफा के इस बिना सनद कौल को इन्होंने अपनी दलील बनाने की नाकाम कोशिश की है। देखा आपने, अहले हदीस फिरका बेसनद बात को दलील नहीं मानता, फिर आपने क्यों इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल को बिना सनद के पेश किया? ये हमारा आपसे सवाल है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। किताबुल फारूक का दुनिया में कोई वजूद नहीं है, यानी ये किताब किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अहले हदीसों का पेश किया हुआ कौल सच में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ही कौल है, ये साबित नहीं होता। आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब किताबुल फारूक के बारे में आपके साथ और कुछ मालूमात शेयर करते हैं। आइए देखते हैं सलफ और कुरान हदीस के एक्सपर्ट्स किताबुल फारूक के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हाफिज अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफात 748 हिजरी में है, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि किताबुल फारूक में ज़ईफ और बातिल हदीसें हैं। देखिए सियर अलामुन नुबुला जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 509। इसी तरह हाफिज इब्ने अजर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 852 हिजरी में हुआ, वो फरमाते हैं कि किताबुल फारूक के लिखने वाले ने इस किताब में मुबालगे से काम लिया है, जिसकी वजह से लोग इनको ताना देने लगे। देखिए फतहुल बारी जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 468। तो ये साबित हुआ कि किताबुल फारूक कोई मोतबर किताब नहीं है, कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है। इसमें ज़ईफ और मौजू रिवायात भी हैं और इसमें मुबालगे से काम लिया गया है, यानी इंसाफ से काम न लेते हुए बढ़ा चढ़ा कर बातें पेश की गई हैं। मुझे बड़ी हैरत है कि फिरका अहले हदीस अकीदा जैसे अहम मसले को ऐसी गैर मोतबर किताबों के बिला सनद अकवाल से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। अबू मुती अल बल्खी, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का स्टूडेंट यानी शागिर्द और अकीदे के इस कौल का बयान करने वाला है, इसके बारे में नाम के अहले हदीसों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हदीस की सनद में दो खराबियां और, एक तो ये है कि उसका रावी अबू मुती बल्खी है, जिसका नाम हकम बिन अब्दुल्लाह अबू मुती बल्खी है। इमाम ज़हबी लिखते हैं काना बसीरन बिर राय, ये राय में माहिर था, अल्लामा था और बुलंद शान वाला, लेकिन हदीसों के जब्त करने में नकारा था। इब्न मुईन फरमाते हैं इसकी रवायत कुछ नहीं, लैसा बिशै। एक दफा उन्होंने कहा कि वो दईफ रावी है, इमाम नसाई ने कहा कि दईफ, इमाम अहमद ने कहा कि मुनासिब नहीं कि उसकी रिवायत ली जाए, अबू दाऊद ने कहा यह जहमी था। क्या था? जहमी था। मुहद्दिसीन ने उससे हदीसें लेनी छोड़ दी थी। इब्न हिब्बान ने कहा कान मिन रुअसाइल मुर्जिया, ये मुर्जिया का सरदार था और सुन्नत और अहले सुन्नत से दुश्मनी किया करता था। इमाम बुखारी ने फरमाया कि ज़ईफ था और इसका ताल्लुक अहले राय से था। अबू हातिम ने कहा कि मुर्जिया में से था और कज़्ज़ाब था। तफसील देखना हो तो मीज़ानुल इत्तिदाल इमाम ज़हबी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 574 जाकर देख लीजिए। फिरका अहले हदीस के इमाम अलबानी ने अबू मुती अल बल्खी को कज़्ज़ाब यानी झूठा और हदीसें गढ़ने वाला कहा है।
देखिए शरह अकीदतुत तहाविया हाशिया पेज नंबर 342। इसके अलावा फिरका अहले हदीस के जुबैर अली जई ने भी इसको हदीसे गढ़ने वाला कहा है। देखिए फतावा इल्मिया जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 137। इसके अलावा शाहिद महमूद ने दिफाए सही बुखारी हाशिया पेज नंबर 192 पर, मौलाना गोंदलवी ने दास्तान हनफिया में और रईस अहमद सल्फी ने अल-लुम्हात में पेज नंबर 133 पर, और अबू शुएब दाऊद ने तखरीज सबीलुर रसूल में पेज नंबर 320 पर, और सलाहुद्दीन यूसुफ ने खवातीन का तरीक़े नमाज में पेज नंबर 33 पर अबू मुती अल बल्खी पर जरह की है, उसे हदीस गढ़ने वाला और झूठ बोलने वाला कहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ ही देर पहले आपने अहले हदीस फिरके के तालिबुर रहमान को सुना था। मजे की बात तो ये है, अहले हदीस फिरका के तालिबुर रहमान ने अपनी ही किताब में अपने ही हाथों से अपनी ही आंखों से देखकर अबू मुती अल बल्खी को झूठा और कज्जाब साबित किया है, और यहाँ जरूरत पड़ने पर इसी रावी को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे में इस्तेमाल करते हुए दोगली पॉलिसी का सबूत दिया है, जैसा कि आपने इसी वीडियो में पहले देखा। हवाला तबलीगी जमात के अकायद पेज नंबर 52। दोस्तों, ये वही धोखा है जो फिरका अहले हदीस हमेशा से अपनी अवाम को देता चला आ रहा है। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट, हमने अहले हदीस फिरके की बताई हुई दलील को खोलकर देखा तो हमें एक और चौंकाने वाली बात मिली। इसी किताब यानी शरह अकीदतुत तहाविया में जहां पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे का कौल लिखा हुआ है, उससे 55 सफ़हात यानी 55 पेजेस बाद ही अबू मुती अल बल्खी को, जो इस कौल का नकल करने वाला है, इस रावी को ज़ईफ कहा गया है। लेकिन अफसोस अहले हदीस फिरके को तौफीक ही नहीं हुई कि वो पूरी किताब पढ़ते। देखिए शरह अकीदतुत तहाविया पेज नंबर 343। इसका मतलब ये हुआ कि अहले हदीस फिरका के एक शख्स ने भी आज तक इस किताब को कभी भी पूरा नहीं पढ़ा। अगर पूरी किताब पढ़ लेते तो कभी ये दावा नहीं करते कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को फिजिकली सिर्फ और सिर्फ अर्श के ऊपर मानते हैं। अगर पूरी किताब पढ़ने और पूरा दीन समझने की अहले हदीस फिरके में सलाहियत होती तो आज ये लोग भी हिदायत पर होते। लेकिन अफसोस ये लोग इल्म से यानी नॉलेज से बहुत ज्यादा दूर हैं, और इससे ज्यादा अफसोस इनकी आवाम पर है जो इनसे सवाल नहीं करती और इनके पीछे आंख बंद करके चल रही है। आइए समराइज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने साबित किया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा साबित करने वाला ये कौल बिना सनद है। किताब अल फारूक जिससे ये कौल पेश किया गया इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ना ही इसका कुछ अता पता है। किताब अल फारूक ये कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है, और इमाम अबू हनीफा का कौल बयान करने वाला अबू मुती अल बल्खी खुद फिरका अहले हदीस के नजदीक झूठा और हदीसे गढ़ने वाला है। इसके अलावा अहले हदीसों ने जिस किताब से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदे का कौल पेश किया है, उसी किताब में कुछ सफ़हात बाद में अबू मुती अल बल्खी पर जरह मौजूद है और उसे ज़ईफ कहा गया है। हम नाम के अहले हदीस आलिमों को 1 महीने की मोहलत देते हुए ये चैलेंज करते हैं कि वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे के इस कौल की सही और मुकम्मल सनद पेश करें, और ऐसा न करने पर वो धोखेबाज और झूठे साबित हो जाएंगे। इस टॉपिक पर और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पढ़ें। तो दोस्तों, देखा आपने, बड़ों और सच्चों की तकलीद छोड़कर खुद की कम अकल और रिसर्च को सही समझने वालों का क्या नतीजा निकला। अगर किसी अहले हदीस फिरके में थोड़ी भी शर्म होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद ये दावा कि तुम अकीदे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते, ये कहना छोड़ देगा और फिरका अहले हदीस से तौबा कर लेगा। अल्लाह हमें फिरका अहले हदीस की धोखा देने वाली तहकीक से बचाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उम्मीद है आपको हमारे दूसरे वीडियोस भी पसंद आएंगे, जिन्हें देखने के लिए वीडियोस पर क्लिक करें। नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें।